सो ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है? एम आई ऑडिएबल? गुड इवनिंग यस सर। एवरीवन। Yes, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, सो ऑडियो क्लियर है अभी? Yes. यस सर। ओके, क्लियर। थैंक यू। ओके, सो वी आर डूइंग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, राइट? ये बहुत, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारी लैब्स हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। So we are doing Active Directory Domain Services labs, okay? So we have done different types of lab for Active Directory Domain Services, okay? So let me add some like more labs for Active Directory Domain Services, okay? So this is my server. I'm going to open my all previous running labs, okay? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कोई हाँ क्वेश्चन है हाँ, क्या किसी को? चार्जिंग था क्या? म्यूट करके चार्जिंग करो ना। तो यहाँ पर 25 रूट है हमारा, और मेरे पास एक CDC है। एंड आई थिंक वी नीड टू क्रिएट, आई नीड टू क्रिएट वन मोर मशीन फॉर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज I think this is the old machine, okay? And this is old machine, and I think we need to create new machine, okay, for base lab. But let me try if there is any problem. So I'll create, okay? This is my DC and this is my ADC, okay? But right now, there is no need to turn on child domain controller, no need to turn on Active Directory, sorry, additional domain controller, okay? But yes, uh, for a simple lab, like if you want to check the FSMO for all three running domains, and if you want to check the status, so it is important to turn on all domains together, okay? So yes, मैं वन बाय वन लाइव कर लेता हूँ और चेक करता हूँ। तो ये क्लाइंट हमारा है, और ये मेरा रूट सर्वर है, ये मेरा चाइल्ड है, और ये मेरा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। ओपन कर लेते हैं, ओके? So as per Active Directory Domain Services, we can perform more than 30, 40, 50, or like more than 50 plus labs, okay? So everyone done the Active Directory labs? All जी previous सर। Active Directory labs? Okay. तो आप लोगों के कंपनी में रोमिंग प्रोफाइल भी चलता होगा, है ना? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लाइंट के लिए, है ना? नहीं सर, हमारे यहाँ नहीं चलता रोमेन। तो यूजर्स का डेटाबेस कैसे मैनेज होता है? किसी शेयर्ड लोकेशन पर, फाइल सर्वर? फाइल सर्वर। ओके, तो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, है ना? सर रोमिंग प्रोफाइल होता क्या है? हाँ, मैं बात करता हूँ उस पर लैब के साथ, ठीक है? ओके सर, ओके सर। हम्म।
ओके, तो दिस इज माय डीसी। ओके, लेट मी लॉग इन। This is DC. So if you want to check, this is the very today's labs are very important for industrial requirement, right? तो आज जो भी हम लोग करेंगे, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जितना भी एडी का है, मैंने क्या बताया था, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एक भी पार्ट आप मिस करो और सोचो कि ये इंटरव्यू में नहीं आएगा, ठीक है? और आप इनकम्प्लीट अपनी प्रिपरेशन कर लोगे तो इट इज़ very important to prepare the sessions labs as per every session. Okay, now after labs, okay, आफ्टर लैब्स, और लैब्स में मैंने आप लोगों को क्या क्या करा दिया, ओ यू, यूजर्स, 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 ग्रुप्स, ग्रुप्स, और क्या किया आपने, वी हैव डन लाइक यूजर प्रोफाइल, यूजर डिसेबल, यूजर इनेबल, password reset, okay, and work group to domain, okay, dc, cdc, adc, RODC, सेम एक स्टेप का अपडेट, मतलब एक जस्ट चेक मार्क था, मैंने आपको बताया था। ये सारी चीज़ें कर लेंगे। ETC, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने किया, एक एक पॉइंट नहीं यहाँ पर लिख पाएंगे। So after doing these all lab, okay, we have done sites, okay, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो about sites, okay, GC global catalog, GC update, okay, etc. So we have done multiples of like labs for Active Directory domain services, and right now we are going to manage the uh, like. Like how to, first of all we need to check how to check FSMO, ठीक है, basically roles and responsibilities of domain. So currently कौन से डोमेन के पास हमारे इन्वायरमेंट का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज़ हम यहाँ से क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो दिस इज़ माय रूट सर्वर, आई एम गोइंग टू चेक द FSMO. So simple, you can just turn on the terminal and you can just type net dom query query FSMO, enter, and you will get status about flexible single master operation. FSMO stand for flexible single master operation. What will happen? ये बोल रहा है कि ये सर्वर अभी ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, इतना झूठ बोल रहा है ये, है ना? तो ये सर्वर ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, चलो SQLive.org है, सो वी कैन जस्ट clear, oh, sorry, CLS netdom
ये तो ये वाला कह रहा है कि ये रो सर्वर अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सिंपल इसको साइन आउट करते हैं और दोबारा से साइन इन करते हैं। मे बी देर इज सम बग आई थिंक विथ न्यू अपडेटेड सर्वर। We can open CMD and then NetDome. ओके, नो प्रॉब्लम। डीसी पर अभी हमें अपडेट नहीं मिला, तो नो नीड टू वरी। जस्ट मैं अपने सभी सर्वर पर एफएसएमओ क्वेरी चेक कर लेता हूँ। ओके, तो पर्टिकुलर क्वेरी इज ओनली फॉर knowing the role and responsibility of any domain controller, means which domain have the complete responsibility of root server. Okay, so this is child domain controller. Oh, sorry, there is mistake. Okay, this is my root server. Okay, and I'm testing the, I'm opening the CMD I think for my main machine. Okay, but I think no, everything is fine. This is additional domain controller, and let me open CMD, or let me check netdom query fsmo, enter. तो मेरे किसी भी सर्वर पर द स्पेसिफिक सर्वर कैन नॉट परफॉर्म द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन। हाँ, ओके, दिस इज द एरर आई थिंक, एंड आई थिंक ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है कि ऐसा भी एरर आता है। तो मैं कुछ नहीं करने वाला, मैंने कल अपने सर्वर को लाइक सडनली शट डाउन किया था। तो मैं अभी इसको रीस्टार्ट करता हूँ कोई रीजन देकर, और प्रॉपर रीस्टार्ट होने देते हैं। ओके, सीडीसी के पास देख लेते हैं ये भी क्या वही एरर दे रहा है। ये तो एक ट्री डोमेन है, तो इसको मैं लॉगिन करता हूँ और सीएमडी ओपन कर लेते हैं, नेटडोम क्वेरी एफएसएमओ। इसको सर और रन एज प्रॉब्लम है। एडमिनिस्ट्रेटर। नहीं 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 नहीं, उसकी नीड नहीं। ऑलरेडी हमारा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर है रूट, राइट। ये इशू नहीं है, आई एम 100% श्योर। हाँ, ये आई थिंक अपडेट वगैरह का इशू है, प्रॉपर रीबूट वगैरह करेंगे तो ये सब इशू नहीं होते हैं, जस्ट बैक एंड अपडेट का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये इशू है ही नहीं। ओके,
इसको इशू के अंदर कंडीशन लाइक वो कंसीडर नहीं करेंगे। ओके। तो जस्ट मैंने रिस्टार्ट किया क्योंकि सर्वर शट डाउन करते हैं तो हम लोग प्रॉपर नहीं करते ना, इस वजह से सर्विसेज प्रॉपर रिस्पांस नहीं करती हैं। बट कोई नहीं, हमने प्रॉपर रिस्टार्ट भी कर दिया, हमारा सर्वर ओके है। और इसमें कुछ सर्विसेज पेंडिंग है, इसको भी मैंने वो कर दिया है। ये भी कोई रीज़न नहीं है उसके लिए, बट यस, सर्वर को एक हेल्दी सर्वर रखते हैं। यहाँ पर कुछ सर्विसेज अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं तो होने देते हैं। एंड जैसे ही हमारा सब कुछ ओके हो जाता है, हम लोग यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेंगे। और यस, लोकल सर्वर में आएंगे sequelive.org, और एक बार डीएनएस को वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि विदाउट डीएनएस दिस इज़ द प्रॉब्लम। Yesterday we have done one lab, like we have just disconnected the all domain from the network, है ना, और उसको मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है। क्लियर है, ध्यान नहीं दिया मैंने, नॉट कनेक्टेड। तो बिना नेटवर्क के हमारा नेटवर्क क्वेरी होगा क्या, काम करेगा क्या? इसको कनेक्ट तो करो पहले, है ना। समझ में आया? कल हम लोगों ने हटा दिया था ना, एक क्वेश्चन किया था, विदाउट यस सर, यस। डोमेन कनेक्टिविटी क्या क्लाइंट लॉग इन हो पाएगा? आप लोगों ने उस पर क्वेश्चन का वो सब सर्च किया, आंसर क्या आंसर है? चलो देखो, 1.10 हो गया, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये कोई एरर है ही नहीं, है ना। और सही भी है, कोई एरर नहीं था ये। नेट डोम एंड लाइक क्वेरी, QUERY FSMO एंटर, नाउ यू कैन सी। सिंपल यही था, कुछ मैंने कहा ना, क्वेरी नहीं था। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है लाइक स्कीमा मास्टर, देयर आर 5 FSMO at the end of the course. I'll tell, means in last module I will tell that what is FSMO and what are the role and responsibility of all FSMO role. Okay, not now, but yes, you can see schema master, domain naming master, PDC, and RID and IM infrastructure master, सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि डोमेन के कंप्लीट इन्वायरमेंट को मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? root.sequelive.org, दिस डोमेन। इज दैट क्लियर? ये हमारा डोमेन वर्क कर रहा है। यानी कि अगर हमारे डोमेन इन्वायरमेंट में 50 डोमेन्स आपने प्लान कर रखा है, 50 डोमेन्स प्लान कर रखा है, तो इसमें से आप 3, अगर आपने 50 डोमेन प्लान कर रखा है, तो जो आपके लाइक ये 3 डोमेन, 3 इन्वायरमेंट होते हैं, ये उसी डोमेन पर होंगे। और बाकी इसके लिए, यानी कि अगर 50 डोमेन्स है तो एफ एस एम ओ सर्वर में जो डोमेन लेवल के एफ एस एम ओ होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा रूट के पास होगा। यानी और कोई एफ एस एम ओ मैनेज कर ही नहीं सकता। ठीक है, कैसे, चलो देखते हैं। इसमें देखो, कह रहा है कि सारा एफएसएमओ मैं ही हूँ। सीडीसी पर आते हैं, और सीडीसी पर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, बट इसको भी नेटवर्क में कनेक्ट कर लेते हैं। नेट, अच्छा ये कनेक्टेड है, नेट डोम क्वेरी एफएसएमओ। इसमें देखो मैंने क्या कहा, 3 तो इंडिविजुअल सर्वर के पास चले गए, मीन्स सीडीसी, है ना, HR.sequelive.org। बट ये हमारा सीडीसी है। बट हमारा जो डोमेन है, स्कीमा और डोमेन लेवल के एफएसएम है, वो हमेशा रूट के पास है। मीन्स ओनली रूट विल बी रूट, नो वन अदर। means everything related regarding domain level authentication, only this server, means root.sequelive.org can manage. Okay, no other server have permission. You can implement more than 100, more than 200, 1500, 5000, 1 lakh server, there is no problem. There is only one domain environment. Okay, means one domain level FSMO, means only one FSMO server in your domain environment. Okay, यही होगा। अगर मैं अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से पूछता हूँ कि टेल मी अबाउट दीज ऑल थिंग्स, ओके, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इसको भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसका भी वही एरर आ रहा था। सो यू कैन सी दिस इज CMD नेट डोम
नेटडोम क्वेरी FSMO and C. Only root because this is the shadow server. This is the ADC server. So ADC cannot handle the root level authentication. ये कह रहा है कि root.sequelive.org है, ये कह रहा है कि हमारा यही सर्वर है जो FSMO का काम करेगा, मैं नहीं। अगर मैं देखूं कि ये किसको नोटिफाई कर रहा है, ये है कौन, इसका नेम क्या है, चलो देख लेते हैं। इसका नेम जो है कंप्लीट ये है sequolive.org। क्लिक करते हैं, कंप्लीट नेम है adc.sequolive.org। और ये किसको कह रहा है कि करंट में कंप्लीट रो FSMO कौन है, रूट डॉट, और रूट कौन है, यही है ना। यहाँ पर भी देखो ये क्या कह रहा है, रूट है। सो रूट के पास जाएंगे और ठीक है, ये भी कह रहा है रूट है। तो सिंपल दिस इज द थिंग्स जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि ये ओके। और आपने क्या देखा कि हमारे पास FSMO के लिए एक ही सर्वर है। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारा ये जो रूट सर्वर है, ओके, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें इस रूट को अपग्रेड करना है, ओके, हमें ज़रूरत पड़ गई इसमें हार्डवेयर लेवल का कोई अपग्रेड करना है, कोई प्रॉब्लम है, या हमें कोई वेंडर लेवल का सलूशन लेना है, सर्वर को डाउन टाइम लेकर चलना है, okay, yeah, any issue, maybe there is any issue like server OS upgrade or any other things, okay, so at that time we can just transfer the FSMO, means all role and responsibility of domain level services from this domain or from the root server to the additional domain controller or other running servers, okay. And according to this lab, you can transfer the complete role and responsibility from one server to another server using FSMO role transfer. This is known as FSMO role transfer. There is two options. Due to security precautions, we can just seize FSMO role. Seize FSMO means SFSMO, or we can just transfer TFSMO. Okay. We can perform both lab as per need and requirement. Okay. बट एज पर सिक्योरिटी कंसर्न हम इसको सीज भी कर सकते हैं, लाइक नो वन कैन ट्रांसफर, नो नो नो, दैट इज़ अनदर पार्ट। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इन व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड व्हाट इज़ FSMO, 5 कंपोनेंट ऑफ FSMO एंड ऑल, राइट, ये सारी चीज़ें। तो हमारा जो कंप्लीट अभी रोल मैनेज कर रहा है वो हमारा मेन सर्वर है। नाउ यू कैन जस्ट टर्न ऑफ दीज ऑल सर्वर्स, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग इधर का लैब जो नेसेसरी लैब है वो कर चुके हैं। नाउ दिस इज CDC, okay, sorry, this is DC and this is client machine, okay. Now let me log in this client machine, and this is the password for this client machine, user2. So yes, this machine can access the environment of domain machine, okay. तो ये प्रॉपर अपना इन्वायरमेंट और सारी चीज़ें मैनेज करेगा, ओके, वन थिंग, ओके। तो यहाँ से मैं अगर इसको अपडेट करता हूँ, छोटा करता हूँ, तो ये हमारा क्लाइंट मशीन है, राइट। कंप्लीट यहाँ पर आते हैं और एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर को अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी मिलेगा रिगार्डिंग एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर। दिस इज़ द कंप्यूटर आइकन, ओके। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द वर्क स्टेशन नेम, इट इज़ वर्क स्टेशन 1। इसका नेम क्या है, अच्छा मैंने नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, ये नया ही है। वर्क स्टेशन नेम पहले मैंने किसी भी मशीन को नहीं दिया था। दिस इज़ वर्क स्टेशन 1, यू कैन सी दिस वन, ओके। तो ये मशीन यानी कि ये एज अ कंप्यूटर ऑब्जेक्ट हमारे रूट सर्वर के अंदर कंप्यूटर डायरेक्टरी के अंदर अपना स्पेस ले लिया है। नाउ फॉर एग्जांपल दिस सर्वर और सॉरी दिस वर्क स्टेशन वर्क अंडर द sales team, so you can just transfer or you can just move the server from this to sales, okay, and just click OK to move this server from this place to this place, okay. This is a simple thing, is that clear? ओके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ये काम और ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, सो क्या होगा नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले, ओके, सबसे पहले
अगर हम ये यहाँ तक कर पा रहे हैं या अपना डोमेन कंप्यूटर यहाँ तक हमने वर्क कर लिया, तो हम जो भी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी होगी हमारे कंप्यूटर्स के लिए वो यहाँ पर अप्लाइड है। ओके, क्लियर है? तो ये हमारा यहाँ पर अप्लाइड है। अब हम लोग अगर कुछ अपडेट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने अपने क्लाइंट को लॉगिन तो कर दिया, ओके, बट क्लाइंट का डेटाबेस क्या है? क्लाइंट जो भी काम करेगा उसका डेटाबेस क्या है? ओके, तो अगर हमारे पास दो क्लाइंट मेरे पास होता और मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाकर सेव करता, ओके, और ये यूज़र इस मशीन से, इस क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पर लॉगिन होता, देन व्हाट विल हैपन? तो फिर इसका जो प्रोफाइल या डेटाबेस है वो इस मशीन पर बना है ना। ओके, करेंट ये जो भी काम कर रहा है यहाँ से आप देखोगे तो ये अपना यहाँ पर कर रहा है यूज़र टू, ठीक है, इसका डेटाबेस ये है। क्यों ये है? अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और विंडोज़ 10 वाले पर जाऊँ तो ये एक्सेस नहीं कर सकता ना विंडोज़ 10 को, क्योंकि ये तो विंडोज़ 10 अपना एडमिनिस्ट्रेटर है लोकल कंप्यूटर का, है ना। तो यस सर। यूज़र टू जो है, दिस इज़ द करेंट प्रोफाइल। तो अभी भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो भी डेटा है वो यहाँ पर सेव हो रहा है, बट रोमिंग प्रोफाइल में क्या होता है? ओके, व्हाट इज यूजर रोमिंग प्रोफाइल? ओके, व्हाट इज यूजर रोमिंग प्रोफाइल? You can just search it on Google and see. This is the simple thing. Okay, so roaming profile is a simple thing which allow, okay, or simple like roaming profile allow user desktop document setting to follow them on any domain computers. Okay, is that clear? तो रोमिंग प्रोफाइल क्या करता है? यूजर को उसका डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट और अदर सेटिंग्स को फॉलो करता है, वो किसी भी डोमेन कंप्यूटर पर लॉगिन करे। क्लियर है? चाहे वो वर्क स्टेशन 1 पर लॉगिन करे या वर्क स्टेशन 2 पर लॉगिन करे या वर्क स्टेशन 3 पर लॉगिन करे, किसी भी। क्लियर है सबको? मतलब जिधर भी लॉगिन करेगा उसका डेटा भी उसको उधर ही मिलेगा। हाँ हाँ, उधर मिल जाएगा, है ना। फॉलो करेगा उसका यस। जो यूजर डायरेक्टरी, यूजर सेटिंग्स, यूजर डेटाबेस, यूजर डॉक्यूमेंट, यूजर डेस्कटॉप होगा, ठीक है। आपने यस कंपनी में सर। देखा होगा कि जब आप एक कंप्यूटर पर आज, आप मान लिया कंपनी में आपके 500 कंप्यूटर लगे होंगे, एक वर्क स्टेशन पर, एक फ्लोर पर 500 लोग काम कर रहे होंगे। मान लिया कि आप जिस कंप्यूटर पर आज काम कर रहे हो, आपने वहाँ पर कुछ फोल्डर बना कर रखा, कुछ नोटपैड बना कर रखा कल के लिए, कुछ भी ऐसे टास्क, और वो कल आकर यस सर। आपको देखते हो तो उस पर कोई और लॉगिन है। आप आकर दूसरी मशीन पर लॉगिन करो तो आपको वो डेटा मिलना चाहिए ना। यही तो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है। तो राइट विदाउट, राइट। अगर हम इंडिविजुअल लोकल मशीन पर सेव करेंगे तो कल हमें उसी पर काम करना पड़ेगा, देन वी गेट आवर डेटा। बट रोमिंग प्रोफाइल विल अलाउ टू फॉलो द डेटा, ओके, टू फॉलो द data and to follow the computers, okay, on any domain computer, means आप किसी भी डोमेन कंप्यूटर पर लॉगिन करेंगे आपको आपका डेटा मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हो की बेनिफिट एंड ऑल। लेट मी ऐड द थिंग्स, ओके, सो यस दिस वन। क्लियर है अभी? ये देखो, सो इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। ओके, ये क्या करता है? एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज प्रोवाइड करता है इंस्टेड ऑफ बीइंग लोकल टू वन पीसी। मतलब एक पीसी पर होने से बेटर है कि आप रोमिंग प्रोफाइल ले लेते हो और जो भी आपकी सेटिंग्स है, जो भी आपका वॉलपेपर है, ऐप है, सब कुछ है लाइव रहेगा हमारे फाइल सर्वर पर। ओके, जो अभी किसी ने कहा ना फाइल सर्वर बनकर चलता है, तो फाइल सर्वर अभी मैं बना देता हूँ, छोटा सा एक सेटिंग शेयर करके कर देंगे।
तो यहाँ पर हमारा सेव होगा। आप किसी भी मशीन पर लॉगिन करते हो, जैसा जिसको नहीं समझ में आया मैं एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। मान लिया कि ये आपका डीसी है, ठीक है। अब इस डीसी से मान लिया कि ये डीसी हमारे इस स्विच के साथ कनेक्टेड है, ये 48 पोर्ट का स्विच है। मे बी यहाँ पर एक वर्क स्टेशन है, मे बी यहाँ पर एक वर्क स्टेशन है, मे बी यहाँ पर, ऐसे मल्टीपल वर्क स्टेशन है जो लॉगिन है। अब रोहन आता है, यहाँ पर लॉगिन करता है इस वर्क स्टेशन 1 पर। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इस 1 पर वर्क करता है। आज है 13 जनवरी, है ना, 13 जनवरी 26। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सुनने में आ रहे दुनिया न्यूक्लियर वॉर में लगी है। तो 13 जनवरी 26 है। और अगर हम देखें यहाँ से यहाँ पर, राइट, यहाँ से यहाँ पर, तो क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर अपना डेटाबेस अगर बनाकर करें और कल आकर यहाँ पर रोहन लॉगिन करता है, तो इसका डेटा तो यहाँ पर है, यहाँ से फिर यहाँ पर ट्रांसफ़र करवाएगा, फिर इसको मिलेगा। तो एक डिसेंट्रलाइज्ड सर्विस लग रहा है। बट अगर हम इसका जो रोहन है, यूज़र, यूज़र हमारा क्या है, यूज़र डायरेक्टरी का डेटाबेस है, ऑब्जेक्ट है, डोमेन का ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर मैं एक फाइल सर्वर, एक फोल्डर क्रिएट करूँ और शेयर कर दूँ और अलाउ कर दूँ रोहन को कि तुम एक काम करो, यहाँ लॉगिन करो, यहाँ 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 किसी भी जगह लॉगिन करो। तुम्हारे सिस्टम पर एक रोमिंग प्रोफाइल सेट हो जाएगा। और जैसे ही लॉगिन करोगे इस पर, इस पर, इस पर, किसी पर, यही वाला फोल्डर एक्सेस कर लोगे अपने होम सेटिंग के लिए। और किसी पर भी लॉगिन करे उसको उसका डेटा मिलेगा, जो भी डेस्कटॉप पर सेव होगा, जो भी सेटिंग्स उसने अपना करके रखा होगा, जो भी उसने वॉलपेपर सेट कर रखा होगा, है ना, सब कुछ एज इट इज़ मिलेगा। So basically, it provides centralized management service. Okay, download on logging. When user download on logging means when user, okay, when user sign in to a domain computer, Windows copy the profile from the server to the local machine. Is that clear? Okay, क्लियर है। वहीं से कह रहा है कि डाउनलोड लॉगिन डिटेल। अब ये इस पर लॉगिन करेगा, यहाँ पर डेटा है, ये डाउनलोड हो जाएगा। इस पर लॉगिन करेगा अगले दिन आकर, डेटा यहाँ पर आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा इसका प्रोफाइल डेटा, ठीक है। सिंक ऑन लॉग आउट, व्हेन यू लॉग ऑफ एनी चेंजेस यू मेड, न्यू फाइल, चेंज्ड सेटिंग और एनी अदर चेंजेस आर कॉपीड बैक टू द सर्वर, अपडेटिंग द सेंट्रल प्रोफाइल। ओके, यहाँ पर सब अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे आप आकर किसी भी मशीन पर लॉगिन करोगे, आपका वही अपडेटेड डेटा आपको एक्सेस करने को मिलेगा। कंसिस्टेंसी बेटर मिलेगा, स्मूथ या टाइम टेकन प्रोसेस यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए आप अपने डेटा को रिट्रीव कर पाओगे प्रीवियसली सभी मशीन को। मोबिलिटी, आप यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, कहीं पर भी लॉगिन करो, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये हमारा रोमिंग प्रोफाइल का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है, और डेफिनेटली काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर ये लग रहा है सुनने में। तो कॉन्फ़िगर कैसे होगा? सो देर इज़ प्री रिक्विजिट टू कॉन्फ़िगर द रोमिंग प्रोफाइल। ओके, without prerequisite it is not possible to configure a roaming profile. Okay, so how to set up roaming profile, how to set up? So first thing, we need to set up ADDS, and we need to promote our server as a domain controller. So without इसके यूज़र ही नहीं लॉगिन होगा, तो ये तो हमारा होगा। सेकेंड पॉइंट, यू नीड टू क्रिएट फाइल सर्वर ऑन डोमेन कंट्रोलर। ओके, ऑन डोमेन कंट्रोलर। And then third one is you need to create user account on DC, जो कि हम ये सब कर रखा है, बस सेकंड ऑप्शन को छोड़कर कोई लोकेशन नहीं सेट किया है। एंड देन फोर्थ ऑप्शन, क्लाइंट क्लाइंट मशीन विच हैव ज्वाइंड डोमेन, राइट, क्लियर है, डोमेन को ज्वाइन किया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपने यहाँ पर देखा। क्लियर है सबको यहाँ पर ये?
सर ये जो फाइल्स मतलब सिंक होंगी वो क्या कॉपी भी क्रिएट होगा? मतलब सपोज हमने PC 1 में लॉगिन किया और उसके बाद सेकंड में हाँ, लॉगिन उस किया तो उसको लोकल उस समय उसके प्रोफाइल पर डाउनलोड हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। ठीक है। मतलब हम इधर से लॉग आउट भी हो जाएंगे तब भी अवेलेबल रहेगा फाइल उस पर? नहीं नहीं, इस पर कहाँ अवेलेबल है, वो तो सारा काम सेंट्रलाइज सर्वर पर हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हो करंट में वो सब यहाँ पर रहेगा और वो ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा यहाँ पर। और जब आप लॉग आउट कर दोगे तो आपको यहाँ से तो खत्म हो गया सब कुछ, फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट डे किसी अनदर मशीन पर तो अगेन वो अपडेटेड डेटा आपको मिलेगा। ठीक है। ओके यहाँ सर। से कोई मतलब नहीं। यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ डेटाबेस सब यहाँ पर बनता जाएगा यहाँ पर, फिर 1,000 मशीन 1,000 यूजर लॉगिन कर दो तो फिर मशीन वैसे ही फुल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं हाँ, है ना। ये डाउट था सर मेरे को इसमें। हाँ। तो ये डाउट, अगर ये वर्ड हम लोग इस्तेमाल करें तो इससे होना ही नहीं चाहिए। जैसे सिंक, सिंक का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ है वो यहाँ है, अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ नहीं है। ठीक है। और यहाँ अगर ठीक। हम अपडेट करके रख दिए तो मतलब यहाँ पर हमारा अपडेट हो गया, यहाँ से हटा दिया तो ये हमारा अपडेटेड है। अगले दिन हम आकर लॉगिन करेंगे, जो यहाँ है वो यहाँ मिल जाएगा, अगले दिन आएंगे यहाँ, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ यहाँ मिल जाएगा, है ना। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर वो अपनी फाइल को लाइक ऑफलाइन करके छोड़ देगा, नहीं ऑफलाइन नहीं, ये सेंट्रलाइज्ड है। ओके। तो ओके उसमें दिक्कत नहीं होती है। आपका डेटा सेव भी है, ऐसा नहीं है कि आपने वर्क स्टेशन 1 पर आज लॉगिन कर दिया तो कल को वो कोई डेटा मिसयूज़ कर पाए। आपका डेटा जैसे ही लॉग आउट करोगे सिंक रहेगा हमारे सर्वर के साथ। ओके। क्लियर है। ओके सर। तो ये, तो हमें ये सब प्रोफाइल है, ये सारी क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना होता है। तो आई थिंक इसमें से हमने बस एक फोल्डर बनाकर शेयर करना है, बाकी तो सारा मटेरियल प्रिपेयर है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट फाइल, वी नीड टू क्रिएट फोल्डर फॉर रोमिंग प्रोफाइल ऑन डीसी मशीन। ओके। तो इस देखो, लैब मैं यहाँ पर नहीं लिख पाऊंगा मैनुअल के अंदर, लैब आप वीडियो के थ्रू परफॉर्म करिएगा। ठीक है। या जो कुछ भी, क्योंकि कितने स्टेप लिखे जाएंगे, फिर तो हजारों पेज का स्टेप हो जाएगा और कहाँ क्या लिखा जाएगा क्या क्या है। ठीक है। तो जस्ट मेरे पास ये एक रूट सर्वर है और मैं इस रूट सर्वर को लॉगिन करता हूँ या अपने डोमेन को, या क्लाइंट मशीन पर आते हैं और माई कंप्यूटर ओपन करते हैं इसकी प्रोफाइल। और यहाँ पर अगर हम लोग इसका चेंज सेटिंग पर आएँ और अगर देखें कि करेंटली हमारा जो क्लाइंट मशीन है क्या ये रोमिंग प्रोफाइल है या नहीं, तो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी देर वेट करते हैं। आई थिंक पासवर्ड गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया। मोर चॉइस में आएंगे, यूज डिफरेंट। तो यहाँ पर चेंज में आएंगे, ना 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 ना, कहाँ पर है ये, रिमोट, और हाँ यूजर प्रोफाइल, एडवांस सेटिंग यूजर प्रोफाइल। नाउ यू कैन सी करंट जो हमारा यूजर 2 है इसका क्या प्रोफाइल है, लोकल है। ठीक है। और ये कितना डेटाबेस अपना यूज़ कर रहा है, 252 MB का। ठीक है। तो ये करेंट डेटाबेस देखो, इसका डेटाबेस 252 MB का क्या है, लोकल डेटाबेस है। अगर हम रोमिंग प्रोफाइल क्रिएट करते तो ये डेटाबेस कहाँ होता, सर्वर पर। ओके। बहुत बड़ा GB TB में डेटाबेस नहीं बनता है, क्लियर है। ओके सर। बस ये है कि यूज़र ने 10 GB की मूवी ना कॉपी करके रखा हो अपने डेस्कटॉप पर अदरवाइज सर्वर के ऊपर लोड होगा, राइट। इसीलिए तो USB पोर्ट और ये सब GPU के थ्रू ब्लॉक कर दिए जाते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। लाइक एक परमिशन GPU के थ्रू हम लोग लाइक परमिशन सेट करते हैं कि .mp4 .avi ये सब फाइल स्टोर ना हो, नहीं तो यूज़र अनवांटेड डेटा स्टोर करेगा। तो वो सारी सेटिंग्स मैं बताऊंगा, ठीक है, ताकि मिसयूज़ ना किया जा सके। तो ये अभी क्या है, लोकल प्रोफाइल पर है। तो हम रूट पर आएंगे और सिंपल क्या करेंगे, एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो हमारे रूट सर्वर पर अगर आप देखो तो रूट सर्वर हमारा अगर देखें तो है डार्क मोड में। तो कह रहा है कि एक्टिवेट करो अदरवाइज डार्क मोड रहेगा। तो कोई बात नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है एक्टिवेट करने की।
तो फाइनल हम सी ड्राइव ओपन करेंगे, क्योंकि और कोई ड्राइव है नहीं, डी ड्राइव होता तो वो लोकेशन दे देते, बस सी ड्राइव नहीं दिया जाता है, सी ड्राइव ओनली फॉर सर्वर यूज़र। ओके, तो अभी तो हमारे पास एक ही ड्राइव है, या मैं यहाँ से एक नया वी एच डी ऐड करूँ तो फिर काम करूँ, बट एक प्रैक्टिकली देखना है तो क्या ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, और ये प्रोफाइल क्रिएट करते हैं डी सी यूज़र, यस सॉरी, यूज़र रोम, ठीक है, क्लियर। यूज़र रोम मतलब जो भी हमारा यूज़र है उसका रोमिंग प्रोफाइल ये है। यूज़र टू, अब इस पर हम आ जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टी पर आते हैं, शेयरिंग टैब में आते हैं, और शेयरिंग टैब में हम एडवांस शेयरिंग पर क्लिक करेंगे। एडवांस शेयरिंग में शेयर दिस ऑप्शन, और हमेशा रोमिंग प्रोफाइल जब भी हम शेयर करेंगे तो एक डॉलर साइन लगा देंगे। वाई डॉलर साइन? क्योंकि ये जो शेयर मैं कर रहा हूँ ये किसी और को ना दिखे, ओनली, क्योंकि अगर हर कोई को दिखेगा नेटवर्क में तो फिर तो ये कोई भी एक्सेस करने की कोशिश करेगा, है ना। यस सर। So you can just add dollar to hide this share, means it is hidden share only for authorized user. Okay, परमिशन में आएंगे, अब परमिशन तो भाई देना पड़ेगा, एवरीवन को देना है या फिर क्या करना है, ओनली यूज़र टू को देना है, क्या देना चाहते हो आप क्या चाहते हो इस फोल्डर को कौन कौन एक्सेस करे, वो तो परमिशन आप सेट करोगे जैसा जिसको चाहोगे। ओके, क्लियर है, एडमिन को, यूजर टू को, रोहन को, मोहन को, वट एवर, ठीक है। तो मैं एवरीवन को रहने देता हूँ, आप सेट कर लेना, इतना तो कर लेंगे ना, यस जिसको सर। भी देना है। हाँ तो आप वो कर लेना, और अगर किसी को भी यहाँ पर ऐड करते हो उसको रीड की परमिशन देना है, राइट की परमिशन देना है, क्या करना है एग्जैक्टली exactly? तो रीड की परमिशन देना है, क्या करना है आप यहाँ से सेट करो। ओके, बेसिकली अगर ओनली रीड की परमिशन एवरीवन को दे दोगे तो मैं एवरीवन को क्यों दूं, मैं यूजर टू को करूं और फुल पर कंट्रोल कर दूं, ठीक है। बट ये आप इतना करना कि स्पेसिफिक यूजर सेलेक्ट करके ये काम करना, एवरीवन कर लेना, क्योंकि रीड ओनली करोगे तो भाई वो डेटा बस रीड करेगा, राइट क्यों कैसे कर पाएगा, राइट। तो अप्लाई करके ओके कर दिया, और अप्लाई किया एंड ओके कर दिया। शेयर में आते हैं, देखो एडमिनिस्ट्रेटर रीड राइट सबको शेयर है, ठीक है। तो एवरीवन को वो परमिशन आपने लगा अप्लाई कर दिया, यहाँ से भी चाहो तो एवरीवन को ऐड करके रीड राइट की परमिशन अप्लाई कर सकते हो, बट ऑलरेडी मेरा वो शेयर है। ओके, और मैं शेयर पर क्लिक करूँगा और ये हमारा रोमिंग प्रोफाइल का डिटेल आ जाएगा, लिंक को कॉपी करेंगे और क्लोज कर देंगे, या यहाँ से ये पूरा लिंक मैं कॉपी कर लूँगा, दिस इज शेयर लिंक। ओके, दिस इज शेयर लिंक, इज दैट क्लियर। यस सर। एक ऑप्शन और आप कर सकते हो इसमें आने के बाद, अगर मैं अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ और एडवांस पर आता हूँ, या तो फिर मैं एडवांस पर ना जाकर सिक्योरिटी सिक्योरिटी टैब में आता हूँ। ओके, सिक्योरिटी टैब में मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी, टू सेट दी शेयर परमिशन। देखो शेयर परमिशन आप इसके अकॉर्डिंग कर लोगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, और एवरीवन को मैंने रीड एग्जीक्यूट दिया है, लिस्ट फोल्डर रीड दिया है, मॉडिफाई नहीं दिया है, तो ठीक है, ज़रूरत भी नहीं, सिस्टम को फुल कंट्रोल देना है, एडमिनिस्ट्रेटर को फुल कंट्रोल देना है, ये ध्यान देना, ऑथेंटिकेटेड यूज़र को फुल कंट्रोल देना है। नहीं तो ऑथेंटिकेटेड यूज़र को परमिशन आप क्या कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो। सो यस, मुझे यहाँ से क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करना है ऑथेंटिकेटेड यूज़र। ओके, ऑथेंटिकेटेड यूज़र अगर मैंने ऐड किया है तो मैं इसको दूंगा क्रिएट फोल्डर की परमिशन,
रीड एंड एग्जीक्यूट, लिस्ट फोल्डर रीड राइट। ठीक है, ये कर सकते हैं। अगर यहाँ से क्रिएट फोल्डर और ये सब नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपने फुल कंट्रोल एवरीवन को दे रखा है। और आप एक काम कर सकते हो, आप एडवांस शेयर में आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, फाइल एंड इसके अंदर आ जाओ, शेयर्स के अंदर आ जाओ, और यूज़र रूम वाले पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में आ जाओ। ठीक है, परमिशन में आ जाओ, और परमिशन में आने के बाद अब देखो यहाँ पर आपका कंप्लीट परमिशन डिटेल और सारी चीज़ें हैं। चेंज परमिशन, एडमिनिस्ट्रेटर को फुल कंट्रोल, एवरीवन को, एवरीवन को रखना ही नहीं है, रीड एंड एग्जीक्यूट चलो ठीक है। सिस्टम को फुल कंट्रोल, ऑथेंटिकेटेड यूज़र को या एडमिनिस्ट्रेटर को हम फुल कंट्रोल देंगे। ये हमारा सीखो लाइव एडमिनिस्ट्रेटर है, और ये भी आई थिंक ये सीखो लाइव स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, दो बार क्यों है, दो एंट्री मैंने कर दिया था क्या, कोई नहीं, किसी को भी सर अगर ऊपर वाला हटाना है तो। ग्रुप है, ऊपर वाला ग्रुप है और ये यूजर है सर आई थिंक। हाँ हाँ, ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये हमारा एंट्री है। तो हमारे एडमिन को तो फुल चाहिए, एवरी वन को आप चाहो तो हटा सकते हो, ऑप्शनल है, राइट। बट रीड एंड एग्जीक्यूट रहने देते हैं, अगर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल है और कोई अदर पर्सन एग्जीक्यूट करना चाहता है कर ले। रीड, रीड से क्या ही सिक्योरिटी ब्रीच का इशू रहेगा, हटाना चाहो हटा सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, इनेबल इनहेरिटेंस। ओके, और अगर मुझे एवरीवन को हटाना है सो यू कैन जस्ट रिमूव इट, ऐड, सेट, ऑथेंटिकेटेड यूजर। अब यहाँ से हम परमिशन, क्रिएट फोल्डर और ये सब कर पाएंगे, लिस्ट फोल्डर, रीड एंड एग्जीक्यूट फोल्डर, मॉडिफाई फोल्डर। बट यस, 1 मिनट, सो एडवांस परमिशन में क्रिएट फोल्डर, क्रिएट फोल्डर एंड अपेंड डेटा, अपेंड डेटा। ओके, वाई अपेंड डेटा, अपेंड डेटा मीन्स क्या होता है आपको पता है किसी को? अपेंड डेटा मीन्स जब यूज़र डेली बेसिस पर काम करेगा और जो जो डेटा उसका अपग्रेड होगा वो यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा हमारे सेंट्रल सर्वर पर। ठीक है, इस लोकेशन पर। तो अपेंड डेटा की परमिशन देकर ओके करेंगे। अरे 1 मिनट, ऑथेंटिकेटेड पर, और मुझे अप्लाई टू दिस फोल्डर, सब फोल्डर एंड फाइल किस पर करना है? तो दिस फोल्डर, सब फोल्डर एंड फाइल, यही सबसे बेस्ट है। सिर्फ इसी फोल्डर पर करना है तो यही कर दो। तो इतना करने के बाद अप्लाई ओके करने के बाद फाइनली हम अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे, डन। ठीक है, ये कुछ ही स्पेशल परमिशन करने के बाद अप्लाई ओके करेंगे, और ये हमारा हिडन शेयर अप्लाई हो गया। क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट टू सेट अप रोमिंग प्रोफाइल। ओके, अब रोमिंग प्रोफाइल के लिए हम आ जाएंगे अपने रूट सर्वर पर, और एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर पर, एंड फाइनली अपने यूज़र को सेलेक्ट करेंगे। तो यूज़र मेरा अभी यूज़र 2 है, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे प्रोफाइल, और ये प्रोफाइल पाथ हमें देखने को मिला। इसमें जाएंगे और एक अपडेट डालेंगे। लोकल पाथ हमें नहीं देना है, ध्यान देना, हमें प्रोफाइल पाथ देना है, दिस इज़ फॉर लोकल। तो यहाँ पर हम दे देंगे इसको परमिशन प्रोफाइल पाथ में, लाइक डबल बैक स्लैश यूज़र, या फिर ठीक है, ये हमारा प्रोफाइल पाथ हो गया। प्रोफाइल पाथ देने के बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा बैक स्लैश, और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परसेंटाइल यूज़र नेम परसेंटाइल, आपको आपको आपने 5 यूज़र सेलेक्ट कर रखा है एक साथ और ये सेट कर दिया, तो उन 5 के लिए ये प्रोफाइल पाथ हो जाएगा। ठीक है,
ये मैंने इसीलिए कॉपी कर लिया था। परसेंटाइल, यूज़र नेम परसेंटाइल का मतलब होता है कि ये यूज़र नेम को जो भी होगा, जिस भी यूज़र नेम की प्रॉपर्टी होगी उसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। आप अप्लाई जैसे ही करोगे, देखो आ गया ना यूजर टू। ठीक है। ओके सर। नाइस। ओके करते हैं, और फाइनली हमने डन कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा वेट कर सकते हैं हम लोग, और थोड़ा सा वेट करने के बाद हम लोग सर्वर पर या क्लाइंट मशीन पर आ सकते हैं। और इस क्लाइंट मशीन को मैं लॉगिन करूं या यहाँ से रीस्टार्ट कर दूं, क्योंकि जो रिज़ल्ट है ना वो मुझे तुरंत देखने को मिल जाएगा। ओके। डन। माई कंप्यूटर, दिस पीसी, प्रोफाइल और चेंज सेटिंग। So you can assign administrator property for authentication, change, sorry, advance profile में, now you can see this user act as a roaming profile user. Clear है? यस सर। तो ये हमारा रोमिंग प्रोफाइल का अपडेट हो गया। अब ये ध्यान देना कि आपका डोमेन ज्वाइंट मशीन होना चाहिए, उसी पर ये लैप कर पाओगे आप, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ओके। अगर मैं इसको अ, इसको अगर मैं यहाँ से एक नया फोल्डर क्रिएट कर दूं, और मैं इसको लॉग ऑफ कर दूं और जाकर दूसरी मशीन पर लॉगिन करूं, तो मुझे ये फोल्डर मिलेगा। अंडरस्टूड? ये फ़ायदा होता है। हर्षित या हर्ष, हर्ष है ना? अभी समझ में आया रोमिंग प्रोफाइल का ये सर मतलब? प्रॉपर समझ में आया सर। ओके। तो अभी इसके अंदर बहुत सारी हैं डिटेल्स और सारा कुछ। ओके। अगर आप सर्वर से वेरीफाई करना चाहो रोमिंग प्रोफाइल, तो यस कर सकते हो आप। जस्ट आप अपना, चूंकि मैंने परमिशन एडमिन को दिया था, पता नहीं, तो ये हमारा वर्जन 2.v6 है। सिक्योरिटी टैब में जाकर मुझे एडवांस परमिशन में कंटिन्यू करना पड़ेगा, और इसको पूरी परमिशन देनी पड़ेगी, है ना? एडमिनिस्ट्रेटर को फुल कंट्रोल देना पड़ेगा रीड एंड राइट का। तो फिर ये भी यूज़र डेटा देख सकता है, राइट? तो ये सिक्योर फोल्डर होता है, कोई और नहीं इसको मैनेज कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ से किसी भी तरीके का, अच्छा बहुत सारी लैब हम लोगों ने यहाँ से कर लिया, रोमिंग प्रोफाइल सब कुछ हो गया। ओके। और एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि मैं एक बार देख लूँ यहाँ से, ज्वाइन क्लाइंट मशीन हो गया, यूजर ग्रुप क्रिएट करना हो गया, क्रिएट क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हो गया, डेलीगेशन हो गया, कॉन्फ़िगर ग्रुप पॉलिसी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके। सो व्हाट अबाउट पासवर्ड पॉलिसी for the domain computers? Okay, for the domain, so you can just check secpol.msc. Okay, msc, to check the group policy for, means policy for password related setting or other settings. Okay, so you can just check
the like password policy as per the detail. लोग अकाउंट सेटिंग में जाएंगे, दिस इज पासवर्ड पॉलिसी सेटिंग. ओके. Default enforce password history is 24 means previous 24 password you cannot add for new password. जैसे आपने पिछला पासवर्ड 123 दिया था, आपने नया पासवर्ड 1234 5 दिया, नेक्स्ट थर्ड टाइम आप 123 देना चाहते हो तो हिस्ट्री वाले पासवर्ड को नहीं देगा. मीन्स टोटल 24 हिस्ट्री रिलेटेड पासवर्ड को वो सेव नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. मिनिमम पासवर्ड एज 42 डेज है, मैक्सिमम ये है आप इसको 999 डेज लेकर जा सकते हो. मिनिमम पासवर्ड एज है, मैक्सिमम पासवर्ड लेंथ 7 कैरेक्टर है. पासवर्ड मिनिमम पासवर्ड लेंथ अगर हम 12 डाल दें तो मिनिमम 12 पासवर्ड लेंथ डालना पड़ेगा. पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इनेबल है. बाकी ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर दिया हुआ है. अकाउंट लॉकआउट यहाँ पर दिया हुआ है नॉट एप्लीकेबल. आप सर्वर पर जितना अटेम्प्ट डालना चाहो डाल दो, सर्वर लॉकआउट नहीं होगा. ये सबसे बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच होता है, मतलब सिक्योरिटी बग होता है, वल्नरेबिलिटी होती है हमारे सर्वर के अंदर. ओके. वी नीड टू ऑलवेज क्रिएट अ थ्रेशोल्ड, लाइक 2 थ्रेशोल्ड, 3 थ्रेशोल्ड, 5 थ्रेशोल्ड, कि अगर यूज़र 5 बार या 5 टाइम या 6 टाइम या 3 टाइम या 2 टाइम इनवैलिड अटेम्प्ट करता है तो उसका अकाउंट लॉक हो जाए और उसको एडमिन से कांटेक्ट करना पड़े. तो इससे अगर ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा होगा कोई हैकर अटैकर, कोई मैलवेयर, तो हमारे अकाउंट को कंप्रोमाइज नहीं कर पाएगा. समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। करेक्ट सर। सर एक बार फिर से बता देंगे प्लीज। पासवर्ड थ्रेशोल्ड का मतलब होता है ना, जैसे मोबाइल में आप 2 3 बार पासवर्ड डाल देते हो, आपका पासवर्ड या मोबाइल पाँच लॉक हो सेकंड दस जाता है। सेकंड वो तो वही यस सेटिंग सर, है, यस। यहाँ से हम सेट कर सकते हैं. ओके. तो ये ज़रूर करना चाहिए, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होता है. क्योंकि ये सेटिंग अगर आप नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल हो, तो मान लिया कि कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है, मतलब घर में दादा दादी हैं, उन्होंने लैपटॉप खरीद लिया, अब उनको नहीं पता, तो कहाँ जाएंगे सिक्योरिटी पॉलिसी लॉक हो गया तो वो करने, है ना. तो ये डिसेबल होता है, बट इसको टेक्निकली इनेबल करना चाहिए फॉर प्रोडक्शन. ओके. बाकी यहाँ पर कर्ब्रोज को हमें सेट नहीं करना है. तो कर्ब्रोस का जो अपडेट है वो यहाँ से आप देख सकते हो. दिस इज़ द ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल. हमारा क्या होता है, कर्ब्रोस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है. क्लियर है? सर किस टाइप की ऑथेंटिकेशन? ये देखो, ये एक्टिव डायरेक्ट सॉरी, ये एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर है. और यहाँ पर मैं एक डीएनएस भी ओपन करता हूँ, डीएनएस. तो यहाँ से अगर आप देखोगे, जो हमारा मेन सर्वर है, इसमें अगर हम टीसीपी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर मिलेगा हमें कर्बरोस एंड के पास डब्ल्यू डी. ओके. ये तो कर्बरोस इज द डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड इन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज to securely verify the identity of user and computer in a domain, right? Means this protocol is act as an authentication protocol for user and for computers. Okay. हमारे डोमेन में सिर्फ हमारे ऑथेंटिकेटेड यूजर ही तो लॉगिन कर सकते हैं, कोई भी हैकर अटैकर का कंप्यूटर थोड़ी ना लॉगिन कर लेगा, उसको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा, है ना, हमारे डोमेन के साथ, राइट. यस सर। तो इट विल ऑथेंटिकेट फॉर यूजर्स एंड कंप्यूटर्स. ओके. इज ओके दैट सर। क्लियर? And यस सर। also, if you want to explain more about this particular protocol, so this will help you to provide secure login authentication, means secure authentication. Okay. It will create user tickets. Okay. User tickets instead of password.
Okay, it will authenticate user request as a ticket. Okay, it prevent password transmission over the internet. Okay, and it support mutual authentication in between client and server in Active Directory domain environment. Okay, अगर क्लाइंट ने मान लिया हमारा ये सर्वर है, डीसी है, मतलब ये हमारा रूट है और ये हमारा क्लाइंट है। ओके, तो यूजर क्या करेगा, या कोई भी कंप्यूटर रिक्वेस्ट करेगा एक्सेस करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी को विद द हेल्प ऑफ और इन अ नेटवर्क। तो यहां पर क्या होगा कि एक केडीसी, देखो इसका एक प्रोसेस चलता है, जैसे ही हमारा क्या है, दिस इज माई डीसी, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज माई क्लाइंट C1। ओके, तो जब ये मान लिया वर्क वर्क ग्रुप कंप्यूटर इसको क्या करेगा, लॉग इन करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, यूजर कंप्यूटर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं एक्सेस करने के लिए। तो होता क्या है कि दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन कि क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। सो सेकेंड ऑप्शन यहां से क्या होता है, एक के डी सी होता है। के डी सी का फुल फॉर्म होता है की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ओके, key distribution center basically runs on the domain controller and issues the authentication ticket for the request, है ना। ये कहाँ पर रन होता है, रन्स ऑन डीसी एंड issues ticket ticket issued authentication ticket, right, authentication ticket. And then third option means authentication server. Okay, authentication server means this one verify user credential on behalf of ticket, not on behalf of password. तो जो पासवर्ड होता है ना, वो एज पर टिकट सॉल्व किया जाता है। ओके, तो इसको क्या बोला जाता है कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है ना, ऑथेंटिकेशन सर्वर इज नोन एज एएस। ओके, के डी सी एएस। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है विच इज फोर्थ और फाइव इज टिकट टिकट ग्रांटिंग ग्रांटिंग सर्वर विच इज टीजीएस, टिकट ग्रांटिंग सर्वर। ओके, it issue the service access as per ticket after authentication. So you can just simple answer, these are the authentication protocol. On behalf of this protocol, client can access the service of domain controller, okay? And the authentication process is based on ticket. Is that clear? यस सर। ठीक है, अभी अगर किसी को डाउट है तो ये एग्जांपल फिर से समझा दूं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तो कर्बरोस के थ्रू अगर हमारा कोई भी क्लाइंट, अगर हमारा कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट और ऐसा कुछ करता है तो कर्बरोस विल एक्ट विथ इनक्रिप्शन। दिस इज द बेस्ट सेटिंग। ओके, तो ये क्या करता है, ये इनक्रिप्शन यूज करता है। और ये कौन सा इनक्रिप्शन किया, किस टाइप का वर्क, एस ओ, व्हाट इज एस ओ टाइप ऑथेंटिकेशन, सिंगल साइन ऑन, सुना है आप लोगों ने। यस सर। यस सर। And Kerberos will work as per or it required time to sync the service, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। और यहाँ पर पासवर्ड नेटवर्क में भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग रिप्लाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ टिकट, और जो रीप्ले अटैक वगैरह होता है उससे ये सेव करता है। तो टिकट के थ्रू तो कोई टिकट अगर हैक भी कर ले तो टिकट से कुछ नहीं हो पाएगा, है ना।
टिकट टिकट जस्ट हमारा क्या होता है, एक वैल्यू है, एक टोकन है ना। बस टोकन के थ्रू अगर बहुत एडवांस हैकिंग करी जाए तो डेफिनेटली डेटा निकलता है, ये सारी चीज़ें। बट यस, ये हमारा ऑप्शन होता है। एक और यहीं पर है हमारा ग्लोबल कैटलॉग, जो कि हमारा इंडेक्सिंग के लिए ऑलरेडी देख चुके हैं। बट देर इज अनदर कॉन्सेप्ट विच इज एलडैप, which is LDAP. So what is LDAP protocol? Lightweight Directory Access Protocol. It is lightweight directory access protocol, right? Lightweight Directory Access Protocol is the protocol used by Active Directory Domain Service, Active Directory Domain Services to access query and manage query और डायरेक्टरी डेटाबेस। डायरेक्टरी के डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए और उसकी क्वेरी को मैनेज करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल है? LDAP, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, क्योंकि जो भी हमारे क्लाइंट और कंप्यूटर्स और ये सब हैं, ये सभी का काम क्या होता है कि हमारे डेटाबेस को, हमारे एडी के डेटाबेस को एक्सेस और यानी कि रीड एंड राइट करना, एक्सेस करना, देखना, रीड करना, राइट करना। ओके, और इसका काम होता है यूजर यूज टू सर्च यूजर की क्वेरी में, ग्रुप सर्च की क्वेरी में, कंप्यूटर सर्च की क्वेरी, मीन्स ऑल ओवर डोमेन ऑब्जेक्ट हैव द indexing or the searches option with the help of LDAP. Okay, means with the help of simple LDAP, just provide directory access authentication for user groups and computers. Okay, ये सारी चीजें। ओके, ये हमारे ADDS पर रन होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोटोकॉल है। ओके, ये सारी चीज़ें। और जब आप AD इन्यूमरेशन पढ़ेंगे कभी, एक्टिव डायरेक्टरी इन्यूमरेशन, वेदर दिस इज द इम्पोर्टेंट साइबर लाइक एडवांस साइबर सिक्योरिटी पॉइंट। सो सॉरी, as per AD enumeration, it is very very important to know that what is the port number, or what about LDAP means port number. So LDAP act under 389, and 389 is just unencrypted communication, and 636 इसको बोला जाता है LDAP, LDAP S secure. It will use, or this protocol use TLS and SSL authentication for data security, इसीलिए तो ये इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। और अगर हम LDAP एज अ ग्लोबल कैटलॉग एट LDAP इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, द पोर्ट विल बी 3268 फॉर अनइनक्रिप्टेड और 3269 फॉर LDAPs। क्लियर है? फॉर ग्लोबल कैटलॉग। तो अगर यहां पर देखो, दोनों तरीके से डेटा दे रहा है ना, एक ही बार नहीं जीसी दिया हुआ है। जीसी मीन्स ग्लोबल कैटलॉग। क्लिक करते हैं, 32768 का मतलब क्या है? क्या बताया मैंने अभी? LDAP 32768 का मतलब LDAP, unencrypted, इनसिक्योर, yes. अनइनक्रिप्टेड। ओके, और यहीं पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक और है 32768, और एक है हमारे पास 32768 और, मतलब ये ऐसा क्या है, 32768 ही है तीनों। क्योंकि अभी हमने अपने सर्वर पर कोई सिक्योरिटी या कोई इंक्रिप्शन के लिए TLS SSL ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट, मतलब सर्टिफिकेट अथॉरिटी तो वो किया नहीं है ना। तो यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू परफॉर्म ऑन योर डोमेन कंट्रोलर फ्रॉम साइबर अटैक।
जो साइबर सिक्योरिटी वाले पर्सन होते हैं ना, जहाँ आप पढ़ के छोड़ देते हो वहां से वो पढ़ना शुरू करते हैं, सिक्योरिटी टीम वाले। तभी तो उनको उतना वो पता होता है कि ये चीज़ हुआ होगा, तभी अटॉप्सी वाले क्या करते होंगे सोचो, राइट। कर्बरोज के बारे में वैसे तो मैं ये जस्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है कि इतना अंदर जाकर कोई ये सब चीज़ें, कहीं पर भी आप देखोगे ना, कहीं पर भी तो बहुत मुश्किल से इतना वो करा जाएगा, बट कोई नहीं, 88 और ये सब मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, तो आप ये चेक कर लोगे आप, ठीक है, कि व्हाट अबाउट सिक्योरिटी, और इज देयर एनी इनक्रिप्शन और नॉट इनक्रिप्शन, ओके, और प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन। तो how you can just provide LDAPs for indexing, और नहीं, like LDAPs like 3269 for global catalog indexing, and 636 for LDAP security, ओके। ये कैसे कर सकते हैं, और कॉर्बरोस और ये सारी चीज़ें हम कैसे मैनेज करते हैं, तो ये सब पार्ट होता है। जैसे कि कर्बरोज का जो होता है ना, कर्बरोज का देखोगे तो 88 मिलेगा। कर्बरोज 88 पर वर्क कर रहा था, आपको अभी मैंने दिखाया था, कर्बरोज का 88 पर था, ठीक है। अरे, एक मिनट, गलती से बंद हो गया। कर्बरोज का 88 पर आपको मिलेगा। डीएनएस मैंने क्लोज कर दिया क्या? हाँ, ये डीएनएस के अंदर सारा अपडेट था। कर्बरोज 88, ठीक है। एंड अब जब भी हम देखेंगे इन सारी चीज़ों को, तो अब इसलिए हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या है कैसे है। एक चीज़ और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पासवर्ड पॉलिसी मैंने आपको बताया था secpol.msc, इसके अंदर अगर हम चेंज करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, सो यस वी कैन डू। मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। कर्बरोस का जो ऑथेंटिकेशन है, कुछ भी है, हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इसका पासवर्ड पॉलिसी बदलना चाहें तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। बट ये हमारा डोमेन में प्रमोट हो चुका है, तो यहाँ से ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेम चीज़ परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग दिस कंट्रोल पैनल, एक्टिव डायरेक्टरी, एंड देन सॉरी दिस वन, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। हियर यू कैन जस्ट ओपन the policy. uh, I'm not explaining what is GPO, how to set up it, okay? Just showing the some details for ADDS, okay? So this is default domain policy, and with the help of this option, you can see what about computer and what about user policy by default. Okay, you can just you can just check policy or policy and see. You can just see or check. एक मिनट, जस्ट सॉफ्टवेयर सेटिंग, विंडोज सेटिंग और अदर सेटिंग्स, ओके। तो मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ तो दिखा देना चाहिए। ये ऊपर से ही मिल जाता है, हाँ, सॉरी, मिल गया मुझे। तो रिस्टार्ट हो रहा है हमारा सर्वर में भी, कुछ बैकएंड में अपडेट हुआ होगा।
ठीक है, लॉगिन हो गया। तो ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पर आ जाओ आप और चेक करो। चेक करो आप यहाँ से डोमेन्स और अपना डोमेन का पॉलिसी, और यहीं से डिटेल में आ जाओ। डिटेल में सर्विस वो पॉलिसी इनेबल है, और सेटिंग्स में आपको ये रिपोर्ट निकाल के दे देगा। ओके करके क्लोज कर दो। एंड इसी यूज़र के लिए पॉलिसी अभी हमारे पास क्या क्या है? यूज कंप्यूटर के लिए तो है, यूजर के लिए नथिंग। कंप्यूटर के लिए हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी के अंदर अकाउंट की यही पासवर्ड पॉलिसी था। अकाउंट पासवर्ड पॉलिसी, लॉकआउट पॉलिसी 0। और करब्रोस के लिए जो भी वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है वो सब यहाँ पर है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है, तब जाकर ये पॉलिसी हमारे सारे कंप्यूटर पर जैसे ही वो हमारे डोमेन को ज्वाइन करते हैं ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। ओके। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से हटा दूँ तो इस ये फ्रीली काम करना स्टार्ट कर देगा, इस पर डिफ़ॉल्ट पॉलिसी हट जाएगी। या मैं यहाँ से मॉडिफाई कर दूँ, राइट क्लिक करूँ ये, बट ये चीज़ पॉलिसी मैं आगे के सेशंस में पढ़ाऊँगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? लैब करना, बहुत सारी लैब हैं इसके यस। अंदर। बाकी आगे जितनी भी लैब होंगी वो सब हमारे एडी बेस पर ही होंगी, तो एडी हर चैप्टर के साथ इंटीग्रेट होकर चलेगा। बिना एडी के कोई भी अगला चैप्टर काम नहीं करेगा, ठीक है, अगर सेंट्रलाइज्ड काम करना है तो ये चीज़ हम लोग आगे के सेशंस में देखेंगे। बाकी नेक्स्ट